day on the road, enjoying the sunlight. ओके अपना नाम समलदास ये हीरो। तो आप कोलकाता वापस जा रहे हैं? नहीं हाँ कोलकाता जाऊंगा, वहाँ कालीघाट जाना अमरकंटक। ओके He was holding a fish which was gifted by somebody on the way. He was looking for somewhere to deal with that. हाँ ओके। तो आप वैसे मुंबई से हो? हाँ अब मुंबई से कब निकला? मुंबई से आज नाराज हो गया। 9 दिन। दिन में कितना सफ़र करते हो लगभग? 150-200 हो जाता है। 150-200 तो हो जाता है। बढ़िया। साइकिल चलाने का तो हमको कोई काम नहीं है, हाँ खाना नहीं मिलता। खाना नहीं मिलता। चलो हम देखेंगे आगे, जब मैं भी खाना है इकट्ठे खा लेंगे। चले? थोड़ा नीचे में जाने का मन करता है। हाँ नीचे जाने का मन करता है। नीचे ही जाएंगे। हाँ हाँ हम नीचे जाके कुछ खा लेंगे। आगे 1 किलोमीटर के बाद एग्जिट है। हाँ। आगे 1 किलोमीटर के बाद कुछ खा लेंगे, मैं भी खाना है। चलिए चलो। A traveler must expect the unexpected. And this is what I have been experiencing for a few minutes. This man has traveled all over India on a normal cycle. I had 1,000 questions to him, and he always had accurate and perfect answers. When I said I had a plan to move towards Ranchi, he was giving me the entire route in seconds, which amazed me. I was thinking what experiences man has got in India. He was saying that he did all India 4 times. This is something phenomenal for a normal person. You can't even imagine 4 times cycling all over India, and that with a normal cycle. The best way to understand yourself is to look at others who are in the same field. Either you understand you are stronger than them, or you would understand there is a way that you need to grow. You never come to know whom you come across when you travel alone. And I have been experiencing it each day. Today it was him. And I'm sure that I will find hundreds of people like him on the way. I have no words to express the feeling that I got after meeting a person like him. He has been living a unique life, totally different from others, traveling all over India all the time, exploring different places. What a man. Seriously, a man with a lot of experiences. He carries a customized cycle with a convertible headlight cum torch, beautifully decorated cycle. While I was getting busy in checking his cycle, he was looking at mine and appreciating. He explained me all the routes that we had been through on the same bicycle. अमरनाथ 7 बार किया है और कन्याकुमारी से लद्दाख किया है, पेंगुइन किया है, जहाँ भी युद्ध हो रहा है वहाँ गया है। कहाँ असम है, कहाँ सोमनाथ है, कहाँ त्र्यंबकेश्वर है, कहाँ कुंभ मेला है, सब हम करके बैठा हुआ है। अच्छा नहीं लगा, साइकिल पे जन्म चलाता है, क्या करो। साल में कितने दिन रहते हैं? रहता है भंडारा रोड है ना, ऊंचा है बहुत, पहाड़ का आदमी रहता है वहाँ।
आपको देख के हम भी बहुत इंस्पायर हो गए। हमें आगे जाने के लिए और ताकत मिल गया आपको देख के। कोई खबर नहीं है। क्या है ना, हमारा ये हिंदुस्तान में जॉब चाहे जॉब कर सकता है, जा सकता है, लेकिन लोगों में मियाँ बोलता है चलो फिर आप मिलेंगे। चिकन करो। बाय बाय। After having lunch with him, I resumed my journey. The highways give you wonderful scenes, sometimes shocking. This car has been totally burnt, and the impact of the burning is reflected on the tree which is quite close to this highway. There was nothing left in this car. I was imagining how the accident would have happened. Sometimes certain scenes will take you back and make you sit for a while doing nothing. The same thing happened with me too. I couldn't resist myself seeing the water, so I stepped down, had some fun. I was approaching closer to the Agra road. I had a chance to interact with the farmers in Uttar Pradesh, and they were sharing their feelings and experiences for the past few हम years. यहाँ ज्वार बोते हैं, बाजरा बो देते हैं, गेहूँ बोते हैं, और ज़्यादातर हमारी मूंजी और वो चलती है। ये कौन सा गांव है? ये कैमराड़ा भोगपुर है। भोगपुर गांव है। तो हमारे यहाँ पे धान लगा रखी है। तो इसमें जो हमारा 2-3-5 साल पहले जो धान 3500-3400 रुपए के लिए 34 के लिए जो बिकी थी, वो पिछली साल 2020 में 38 तक वो ओनली 1850 रुपए बस ओनली। जबकि 5 साल में इंडिया ने फिर क्या प्रोजेक्ट करा, मतलब 3700 से मतलब 1850 पे आ गया। मतलब किसान डीजल तो 40 से 90 में पहुंच गया, और किसान की जो कमाई है मतलब 1800 होगी, मतलब 3700 से 1800। हमें क्या कुछ नहीं बचा। बेकार सारे हमारा खाली पड़े रहे अपने। कमाई आधा हो गया, खर्चा डबल हो गया। हाँ जी, आज तो अपने खेत खाली पड़े रहे, ठीक रहे वो। क्या हमें क्या हमें कुछ नहीं बच रहा। आप इसमें क्या केमिकल भी डालते हैं कोई? केमिकल हमारे में जिंक जाइम, जिंक जाइम और अपने जो स्प्रे वाली दवाई लगवा देगा। आपको ये केमिकल के अलावा कुछ देसी कुछ जुगाड़ कुछ नहीं होता इसमें? कुछ नहीं। अगर हम आपको केमिकल के बिना कुछ अरेंज करें तो आप इस्तेमाल करोगे? कर करेंगे लेंगे। जब तुम दोगे। अगर फायदेमंद होगा हाँ, तो हम करेंगे। मतलब ये है ना, आप मेरे ख्याल से आप उस दुकान में बहुत पैसे देते हैं वैसे केमिकल मैं के लिए। आपको बता रहा हूँ सर, जिन लोगों ने दुकान खोल रखी है छोटी छोटी दवाई की, और वैसे वो क्या है कि किसान को ये बता देते हैं ये 1000 रुपए की दवाई है, ये घास मारे, लेकिन 1000 रुपए का उसमें यूज करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। मतलब ऐसे लोग दवाइयों को लिए बैठे जिनको कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि इस दवाई से होना क्या है। और किसान को अगर ये कह देंगे कि ये जाइम है तो जाइम है, उससे क्या होता है, किसान तो समझ लेता है जाइम है, इससे मेढ़ा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सारे अनपढ़ बैठे हैं उसमें दवाई। जैसे किसान को समझाते हैं ऐसा अपना वो रेट 1000 बता दे, 1500 बता दे, उस पे हम वो कर लेते हैं। ये हो रहा है। अभी धान में 2 बार हमारी एक कट्टा डाई को लग 3 बीघे में, एक कट्टा डाई है, इसमें 2 बार यूरिया लग चुका है, जिंक जाइम डबल लग चुके हैं। और आज बुग्गी में दरा हमारा है। जब आप ये स्प्रे मारोगे तो वो केमिकल पूरा अपने पानी और मिट्टी में भी निकल जाएगा ना। हाँ, तो आगे हमारा मिट्टी भी खराब हो जाएगी। तो भैया हमें तो थोड़ा यो हमें तो लगा हम साढ़े में बचे नहीं 1 रुपया, हमको तो कुछ नहीं बचता। यस तो वो बना तो जब भी ठीक खाली रहने तो साढ़े अपने ढोर जंगल अपने चुकेंगे इसमें। बस इतना होता है सर, क्योंकि अब हम खाली रहते हैं, काम वो दिन है। कोई भी कम पढ़े लिखे, जॉब नहीं मिल पाती अच्छी,
5-6 हज़ार रुपये की जॉब करने से अच्छा है अपने खेत में काम कर ले। अपने घर इस को वजह खाना से पीना चलता रहा, खर्चा पानी। काम का इसे लगा ले, काम कर ले। लेकिन इससे कोई हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, दिन पे दिन कर्जे में और उसमें जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 5-6 साल पहले हमने धान बेची 3700-3500 रुपये में 48 और 2020 में हम बेच रहे हैं 1800 रुपये में। बताओ क्या क्या फ़ायदा हो। 48 इससे तो हम पीछे से ही और अब तो और सर पिछली बार हमने यहाँ पे धान लगाई थी तो बारिश के कारण जब धान में वो बाल आ गई थी ना, जब धान कटने का समय आ गया था, उस समय ऐसी बारिश हुई थी पूरी धान मर गई थी यहाँ की। ये पूरा एरिया खत्म हो गया। बहुत मोटा था। वहाँ से वहाँ तक कोई भी कुछ नहीं बचा, फिर आपको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। मैंने 20 बीघे मूंजी बोई, ठेके में खरीद लिया 1000 बीघे। मतलब सरकार की तरफ से सरकार को ये पता है कि सरकार को ये पता है कि हम जैसे किसान हैं वो हमारे खेत है, ऐसा कुछ नहीं है हम किसी और के खेत में काम करके। उनका पता है सरकार को, उनका तो पता ही नहीं है। जिनके अपना फार्म है उनका दूसरे को उन्होंने दे रखा है, पैसे उसके लग रहे हैं। किसान के तो अपने अलग हैं, किसान का खेत है, लेकिन काम जो कर रहा है वो दूसरा आदमी कर रहा है, वो तो सरकार को नहीं पता कि किसने पैसे लगाए। हमने ये खेत लिया है अब 4000 रुपये में, 4 बीघे 4000 रुपये में हमने लिया है। वो बस धान लगाने के लिए लिया है, 3 महीने में धान हो जाएगी। अगर धान सही से हो जाती है तो हम उसके 4000 दे देंगे, अन्ना भी होगी तब भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं होती है तो हम तो वैसे भी डूब जाएंगे उसमें भी। तो सरकार को ये पता है कि किसान का खेत है, लेकिन जो किसान के खेत में काम कर रहा है उसका पता ही नहीं है कि कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या है। कुछ किसान तो खेत धान लगा भी नहीं पाए, ये धान नहीं लगा पाए, वहाँ भी खेत खाली पड़े, ये धान नहीं लगा पाए डीजल की वजह से। पिछली बार हाँ, पिछली बार इसमें सारे में धान मर चुकी थी। ये कम से कम 10 बीघा होगा, 10-15 बीघा, 15 बीघे, और ये सब खाली पड़े डीजल की वजह से। पिछली बार धान क्योंकि मोटर चलते रहना चाहिए ना, हाँ। इसलिए आपको डीजल की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। बहुत सर, अब की बार तो यहाँ पे तो बारिश ही नहीं हुई। ये लगा लो डीजल ये चलता है कम से कम 3 लीटर में 300 रुपये में 2.5 घंटे चलेगा। बारिश पड़ गई और कल और बारिश पड़ेगी तो और फिर ज़्यादा पड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये मट्टी तुमने देखी ठीक पड़ती है। It was time for me to find a place to have some refreshment, and it happened. It was getting dark, the sun was about to set. I was looking for a chance. I can see the farmers still using as much chemicals as possible. My mission is to introduce the chemical-free farming methods into a full-fledged version, and I hope I can do it by visiting Hyderabad if possible when I come back. There is a man who has dedicated his entire life for organic farming. I hope I'll be able to implement the same idea as much as possible once I meet him and have a talk with him in such a way that we could implement these methods. My plan of meeting the farmers was also successful, and it's a time for me to go to bed, so I had to set up my tent. I found a place to pitch my tent, and it's time for me to relax, sleep, and continue the journey to find new farmers, new experiences, and I also want to have a new life for the entire India. Hope for a better India in future. Have a nice time. Good night.